Good evening, all of you, and welcome to day two, the loss of karma and karmic loss, also we can say. And today we are going to learn many things. I hope myself, Padma Kate, I am a holistic nutrition coach, and all these sessions are conducting with the meditation Heal Within You group. And today we are going to learn about the karmic, okay, how in our Vedantas, how they are divided and what are the principles behind. And in first session already I told you, I referred the two books, right? One is the karmic law and another one is the beautiful soul's journey. So in that books also they are very beautifully explained the 12 principles of the universal laws. Universal laws means नो वन विल एक्सेप्ट दैट रूल्स एंड दैट रेगुलेशंस. हम लोगों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग फॉलो नहीं करेगी उसका कोई इंसिडेंट मीन्स जो कॉन्सिक्वेंस होती है वो तो लेना ही पड़ेगा, राइट? एंड today we are going to recap our first session. How many of you remember a few things about the first session? What are the important points in first session? Anyone? Soumya, Nalini, Anirja, Prashanti, Vinita, anyone? You can say it, ma'am. I have written it, the notes. Hmm. So first is karma is knowing about oneself. Hmm. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోవటమే కర్మ. Yes. Okay. And karma is a very strict teacher. Okay. Hmm. Whatever we do, it's going to teach us back. Um, like when you know about karma, you become very aware of your words, actions, and even thoughts. Hmm. That is one thing. And there are four types of karma. There are Hmm. individual karmas. Like Hmm. if somebody is facing any challenges with health, personal relationship, or career, it comes under individual karma. The Hmm. second is family karma. Like Hmm. if their family is going through some trouble times, and Hmm. we are also affected due to that. So Hmm. just quiet for a second. Yeah. Sorry, ma'am. Yeah. Then it comes under like family karma, because we are like, we came into the family because of some karma, and we are also facing that whatever the family is going through, we are also sharing that thing. So Hmm. that is group karma is one thing. Like if something is going on, like even politics or like some debate is going on unnecessarily, if we are also participating in that, so we are also contributing the group karma, like Hmm. criticizing somebody, criticizing some thought or something like that. Appreciation is fine, but criticizing, it gives the bad karma only. The fourth one is like country or global or city karma. Like you have given an example of COVID situation. So entire globe has affected because of that karma. So that is one thing. Yeah. So yeah, how to cleanse one's karma? Like stop blaming or criticizing. And there are some benefits for soul's journey will be there. Vasana is mostly like the previous janma samskaras, whatever the things which you have learned and which you have got it. That is Hmm. vasana. And soul's journey. There are like so our life journey, our age is different, and soul's age is different. According to that, if we see that the soul has different stages. Infant stage, somebody Yes. who is behaving very childish, they are like very their soul age is very small, like an infant kind of a thing. If it is Hmm. an like teenager, they want to explore everything, they have that kind of nature. If it is Very an good. adult soul, then they want to get everything. Hmm. They need everything, they want everything. If it is matured soul, then they are mostly inclined towards spirituality, like doing some puja part jap and all that. And even a small child also, he'll have a if you observe them, they are very kind towards others. That means their soul is very matured soul. Though they are very small, they are a very matured soul, they are. And how to clear the karmas? By doing meditation, by doing seva. Like even spending some time with somebody in need also is a good seva only. I mean, that is also a seva. Doing some donations, but with a pure intention.
not having in mind that, okay, I'm going to make good karma. It's not like that, but Hmm. with a genuine thought of helping others, like that. By acceptance and by forgiving, we make this good karma again. I mean, we can clear the bad karma. Very good, Soumya. You know, done very clearly. Because these are the step-by-step process, and this knowledge is the I'm giving through my knowledge with my under what I observed in throughout my journey. But when we can apply na, after the sessions or maybe after the classes, what we can listen and we will forget, right? We are when we are not applying, when you know the knowledge, but when you are not applying those things, it fades, means it will be dried. Okay, already we learned in the gratitude sessions, and today we are going to the simple principle way, simple clarify way in Vedantas, and in Bruhanishad Upanishad, Yalko Maharshi also, he told that what you give you will receive, right? आप लोग जो देती हो पहले देना पड़ेगा, what you can give you will receive, right? सिंपल फॉर्म में है, एंड ऑल्सो इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोशन एंड इमोशन, राइट? मोशन के थ्रू से जो एक्शन होती है उसका मोशन का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स ऑल आर देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स एंड in our scientifically also all these are proved. Today we are going to learn in Vedanta simplify. In simplify meaning, karmas are mainly divided into the four forms. When we will know about these things, okay, so after that, what are the principles? We have the 12 principles about the karmas. That's why I'm not given to your question, Soumya, because we are going through the examples. We have the many laws, right? Some are dominating in our life, some are maybe that are not dominated, but we are not utilizing, or maybe we are not inculcated in our life. So after the ending of our sessions, we will know that which law we are following. Every law is have the good and bad, right? It means how we are applying those laws, 12 laws. If we will know these four laws, okay, karmic siddhant, we will easily understand about the other 12 laws that are the universal laws. And what are that? Maybe all of you know that is the first one is the prarabdha karma, second one is the sanchita karma, third one is the agami karma, fourth one is the vartamana karma, otherwise prayatna purva karma. Okay, we can say four karmas in our life. So today I'm going to take about before these four. Okay, so I'm going to explain one story. And what is Piece the of third one? Third one? agami karma. Agami means coming. Agami. Okay. So in prarabdha karma, first I am going to give the one example, simple example. Prarabdha karma means that is a ripened fruit like. Ripened fruit means, for example, if you are taking one mango tree, okay, all fruits are there, some are ripened, some are maybe raw form. Which fruit is ripened, okay, if wind is coming, otherwise nothing, any your intention, maybe your action, they are falling down, right? Because that are already ripened. In Telugu we can say paripakwa, in Hindi also we can say paripakwa. Exact word is for prarabdha karma, that is the paripakwa karma. Paripakwa karma is how we are applied in our life. First thing is maybe we are acquired in this life, or maybe we are acquired from the past life, we don't know whether they are, but that karma is already ripened. Ripen means compulsory we need to be experience those karmas consequences, उसका तो हमको experience करना ही पड़ेगा, we don't have any other choice, चाहे अभी चाहे नेक्स्ट, उसको तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो क्योंकि उसका तो ऑलरेडी राइपन हो गई है, उसको हम बैकअप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको तो लेना पड़ेगा आपको वो एक्सपीरियंसेस, मे बी दैट आर गुड और मे बी बैड. Good or bad means nothing, karma will be not a good or bad, but if you are feeling throughout karma, if you are feeling sad or maybe you are feeling
some bad situation, you feel that this is my good bad karma. If you are enjoying through that karma, maybe acha children hai, very nice husband, maybe good properties, you are enjoying very good health, so that is you are thinking that my good karma, right, है ना? मैं किस जन्म में बहुत अच्छा मीन्स जो गोल्डन फ्लावर के साथ पूजा किया होगी, इसलिए मुझे इतना अच्छा पति मिल गया, इतना अच्छी लाइफ, बिकॉज दैट यू आर थिंकिंग दैट आर द गुड कर्मास, राइट? So we are dividing here what is good, what is bad for ourselves. Okay, if we are in a means sad moment, maybe veda hoti hai na, jo veda which karma ke sath situation ke sath, so that we are feeling that are the bad for ourselves, that are the prarabdha karma. Prarabdha karma already explained, that are the ripe and fruits, उसको तो गिरना ही पड़ेगा. Now we are taking वो अभी हम लोग this time में, now what we are experience in our life, that are the ripe and karmas, means prarabdha karma. Okay, prarabdha karma, sir. Now we are experiencing our, maybe in now we are in certain age. Okay, maybe we are already experienced, means that karma is already released. Otherwise, now we are experienced, means now we have to be accept the prarabdha karma. How we know that this is the prarabdha karma, right? If we are doing so many things, but उसका solution नहीं मिल रही है, उसका intensity कम नहीं हो रही है, just accept, because that is the prarabdha karma, राइट? बिकॉज दैट ऑलरेडी राइपेंड. इसके लिए मैं एक अच्छा ब्यूटीफुल स्टोरी बताऊंगी. व्हाट इज द स्टोरी? व्हेन महाभारत युद्ध इज मीन्स महाभारत वॉर इज फिनिश, सो धृतराष्ट्र ने क्या किया था? धृतराष्ट्र वेंट टू कृष्णा, एंड कृष्णा के पास जाके ही वॉज टोल्ड दैट कृष्णा, व्हाट आई डन इन माई पूर्वजन्म, मे बी आई हैव दिस मच बैड इन माई लाइफ. आई डोंट हैव माई आईज. ओके, मेरे को आइस नहीं था, एंड आई हैव 100 पुत्र. उनको लिए तो मैं पूरा लाइफ मेरे को बहुत बाधा लेना पड़ा. आफ्टर दैट नो बडी विल रिमेन इन माई लाइफ. तो व्हाट आई डन इन माई लाइफ, मैंने ऐसा क्या किया है कृष्णा, मुझे बताओ. तो कृष्णा ने क्या किया था, एक हंस के फिर कृष्णा ने बोला था, धृतराष्ट्र, ओके महाराज धृतराष्ट्र, तो आपका क्या हुआ है? Padma, all are Telugu only. You can talk Telugu. No, this is going in YouTube also, na? Okay, That's why. okay. Thank you. हाँ, सो धृतराष्ट्र को क्या बोला था अब कृष्णा ने, महाराज धृतराष्ट्र, व्हाट यू हैव डन बिफोर 50 लाइफ्स बैक, इन योर 50 पास्ट लाइफ बैक्स, आपने क्या किया था? आपको अनजाने में, मीन्स विदाउट एनी इंटेंशन बट द सेक ऑफ फन, उसने क्या किया था? एक बर्निंग का जो नेस्ट होती है ना, बर्निंग का नेस्ट था जो फिशर लोगों के पास होती है ना, दैट नेस्ट को उसने क्या किया था? दैट वाज बर्निंग दैट टाइम. उसने क्या किया था? जस्ट सेक ऑफ फन, उसने एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, लाइक ए पीपल ट्री जैसा, उसके ऊपर बहुत सारा चिड़िया बर्ड बहुत रहते थे. तो उसने सेक ऑफ फन, वो बर्निंग का जो नेट होती है ना, जाली हम लोग बोलते, उसको क्या किया था? उसको निकाल के पूरा पेड़ के ऊपर वैसा फेंक दिया था. द फन ऑफ सेक, उसको तो तब कुछ भी पता नहीं था, बट उसमें क्या हुआ था? बहुत सारा चिड़िया मर गई, बहुत सारा, उसका जो फैमिली होती है ना, जैसे इसमें से बहुत सारा मर गई. तो उसका जो श्राप होती है, वी कैन से श्राप, बट ऑलरेडी ही डिड कर्मा विदाउट एनी इंटेंशन, बट फन ऑफ सेक ऑल्सो. उनका तो कोइंसिडेंस तो है ना, उनको जो बच्चा मर गई है वो भी बहुत तड़प तड़पते, उनका जो डेथ हुआ था उसका तो सब लेना ही पड़ा. ठीक है, इसीलिए उसका जो वो मर गई है, उसका अभी आपको ये कर्म अभी ये जन्म में आपको लेना पड़ा. तो उसने बोला था कि ठीक है, फिर मुझे क्यों तब लेना है? एक जन्म में क्यों नहीं लिया था मैंने? शायद मैंने 50 है ना, तो 49 के बाद मुझे क्यों नहीं आया? आफ्टर मेरा नेक्स्ट जन्म में 2 to 3 जन्म में मुझे क्यों नहीं आया? अभी 50 जन्म तक मुझे ये कर्म, प्रारब्ध कर्म मुझे क्यों लेना पड़ा? तब कृष्ण जी ने बोला है कि आपको क्या है ना, 100 पुत्र आपको होना है. ठीक है, उसका इंटेंशन था अभी. तो वो 100
पुत्र होना है तो उसका पुण्य भी लेना चाहिए ना, उसका पुण्य भी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज बैलेंस, नॉट ए गुड नॉट ए बैड, एवरीथिंग इज बैलेंस। तो वो अभी आपने जो वो टाइम पे जो भी अच्छा काम किया है उसका भी फल है। एंड नाउ यू आर अक्वायर्ड दिस 50 जन्म का जो पुण्य होती है, जो कर्म होता है, जो एनर्जी होती है ना, वो दैट आल्सो अक्वायर्ड, दैट्स व्हाई यू गॉट इफ 100 ऑफ आपका बच्चा हुआ था, 100 चिल्ड्रन, राइट। तो ये भी पुण्य है, ठीक है। इसीलिए कोई भी बैलेंस नहीं रखती है, ये कर्म है। मीन्स प्रारब्ध कर्म को तो ऐसा नहीं सोच सकता है कि फास्ट लाइफ में हमें जो मिला है अभी नहीं मिला है, वैसे भी नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट आर नॉट राइपन। ओके, इफ राइपन मीन्स नाउ वी आर फेसिंग सम, बहुत कर रहे हैं बट वी आर फेसिंग दैट इश्यू, मीन्स जस्ट एक्सेप्ट उसको, तो कोई चेंज नहीं कर सकता है प्रारब्ध कर्म, बट वी विल reduce that intensity. Next we are, it's clear, prarabdha karma. Next we are moving to the sanchita karma, second one. In prarabdha karma we can say that matured karma or matured energy, आधा नहीं होता है, that is the matured. And next we are moving to the sanchita karma. Sanchita means that is also in our past lives only, but that is not ripen. For example, same example I am taking, we have the big tree, mango tree, and that fruits which are fallen down, that are the prarabdha karma, but which are not fallen down, that are in the ripen place. Means एक पेड़ के लिए आम आ गई, बट सब तो एक बार पकेगी नहीं है, उसका तो टाइम अलग अलग टाइम होता है, राइट। तो जो राइपेन नहीं है, जो रा वाला है, दैट और द sanchita karma. Means in sanchita karma is beauty if you are full of awareness, right? If you are full of compassion, you have choice in your sanchita karma. वैसा बोलता है ना, तो वी आर यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाई वी कांट चेंज एवरीथिंग, हम इतना कर रही है बिकॉज ऑफ प्रारब्ध कर्म, राइट। कभी कुछ वैसे नहीं होती है, दैट इज द प्रारब्ध कर्म, बट सबको जो होता है दैट इज द संचिता कर्म। संचिता मीन्स वी आर अक्वायर्ड इन आवर पास्ट लाइफ, but that is the not time, वो भी now what we are here today, सब लोग इधर इतना अच्छा प्लेस में है because of your good karma, that is comes under your sanchita karma. Because of you here, we people are having 3 times food, home, everything, बच्चे, husband, जो भी health जो भी है, because of that sanchita karma. In sanchita karma we have that luxurious also, because good and bad are both are equal, right? But now we have that choice in our hand. अगर आप लोग थोड़ा अवेयरनेस के साथ कुछ छोटा छोटा चीज आ रहा है, मीन्स सब, मे बी दैट संचिता कर्मा विल बी कम इन योर फ्यूचर ऑल्सो, मे बी इट इज नॉट टाइम, वो अभी टाइम नहीं है आपका, ठीक है। थोड़ा 10 years के बाद कुछ होने वाला है, बट नाउ यू आर अवेयर अबाउट द कर्मा theory, अबाउट द ग्रेटिट्यूड, अबाउट द हीलिंग। नाउ यू आर डूइंग द मोर, बहुत अच्छा काम कर रही हो, मेडिटेट कर रहे, अदरवाइज यू आर डूइंग सर्विस, यू आर डूइंग द, अगर आपको कोई सिचुएशन आ रही है, राइट, एनी सिचुएशन, सो यू आर नॉट ब्लेमिंग, you are not blaming, just you are accepting, it's okay. Okay, you are not blaming anyone, but you are working to yourself. आप लोग क्या कर रहे हो, आपके लिए खुद काम कर रही हो, राइट। दूसरों को लिए हम लोग कहाँ पे करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम खुद एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, नो, इट इज द रिवर्स वे, राइट। दूसरों को एक्सेप्ट करना है, हम खुद पे काम करना है, दैट इज द राइट थिंग इन एनी वे, इन एनी योग, एनी टाइम, इन फ्यूचर, पास्ट और मे बी प्रेजेंट टाइम, जस्ट यू नीड टू बी वर्क ऑन अवर सेल्फ एंड एक्सेप्ट टू अदर, उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके डिटच करना पड़ता है कुछ चीजों में। सो दैट इज द संचिता कर्मा, मीन्स नाउ ऑल्सो यू हैव दैट चॉइस इन योर हैंड, उसका आप लोग न्यूट्रल भी कर सकते हो, इफ यू वांट यू नीड टू बी डू द बैलेंस आल्सो, अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा है तो भी यू नीड टू बी, बिकॉज यू आर बैलेंसिंग ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल इन 100 बैड कर्मा आप लेके आई हो, बट नाउ यू हैव दैट चॉइस, यू आर डूइंग सम सेवा समथिंग, यू आर एडिंग दैट थिंग,
right? You are adding 10%, 20% through your awareness. So automatically how much percent you have? If you are adding 20 minutes, 80 have that in your 80 का bad karma है. Automatically you are changing that future. आपको कोई सेशंस आ जाएगी आपके अंदर, इफ यू हैव दैट फ्री विल, आपका अभी फ्री विल होती है इन संचिता कर्मा, right? In sanchita karma you have the free will and you have the compulsion. दो तरीके होती है, right? I am going to explain in 12 principles. compulsion का क्या रिजल्ट होता है, when we can do our free will, उसका भी रिजल्ट अलग होती है. And third one is that is the agami karma. Agami means in that only we have that means आने वाला, that in the future, right? And karma means you know that energy, right? Our future energy or maybe present past energy. Agama means that is related to in our sanchita karma. If we are doing any work, agami means that is in our future, na? Maybe that is tomorrow or maybe 10 years, 5 years. And this time I am doing something, okay, all of you are attending this session because this is your free will, not a compulsion. This is your free will. This karma will create huge impact. आपका free will से जो भी काम करेगी ना, वो तुरंत उसका blessings तुरंत मिलेगी. नेट कंपल्शन से करने वाला चीजों को फ्यूचर में मिलेगी. आगामी कर्म में कैसा होता है, सपोज कुछ होने वाला है कल या परसों, बट टुडे यू आर डन विथ योर कंपैशन काइंड के साथ, यू आर डन सो मेनी गुड थिंग्स और मे बी यू आर रिसीव्ड certain few blessings in your life. So what will be happen, you are adding good na, so that will be disappeared, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी. अदरवाइज उसका हम फ्यूचर का जो भी है, now you have that creation process now in future. आगामी कर्मा मीन्स एट व्हाट यू आर थिंकिंग नाउ, व्हाट यू आर डूइंग. आपका जो संचिता कर्मा का जो बैग है ना, उसको आप लोग चेंज कर सकते हो इन आगामी कर्मा. मीन्स वो फ्यूचर का हम लोग क्रिएट कर रही है, राइट? And last one is the vartamana karma. Vartamana means now what we are doing this present, this is the creation wala hai, means our future के लिए agami sanchita is combined together, means already we have that bag past life का है, जिसको हम आगामी कर्मा के साथ we have to be change. हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव दैट चॉइस इन आवर हैंड. एंड Vartamana karma is now what I am doing today. Okay, this moment, what I am doing today. If I am doing the 10 blessings to the weather or maybe or anything, what I am doing, automatically I am creating that positive, good balance, good blessings into my future. Maybe that will be utilized this time or maybe that will be utilized anytime, we don't know. ठीक है, this is the whole cycle है, like prarabdha, sanchita, agami and also vartamana. These are the 4 cycles. इसका क्या है, for example that river is means flowing, okay, one place to another place, but river is flowing, river will be received, river will have the mountains, maybe वैसा होती है ना, रिवर के सामने अच्छा भी होता है, कभी मिट्टी आ जाती है, कभी पेड़ पौधे होती है, कभी डेड बॉडीज होती है, बट रिवर मीन्स वाटर विल एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड जस्ट दैट इज गोइंग फ्लो एंड उसका लास्ट गोल क्या है, टू मेट दी सागर, मीन्स सी में उसको मिलना चाहिए, फ्लो इन. सो हमारा भी ये साइकिल कैसी होती है, हमारा भी एक गोल होना चाहिए, राइट, क्लियर होना चाहिए. सो हम लोगों का लाइफ का क्या जर्नी है, वेयर वी आर गोइंग अवर जर्नी. material thing तो है, right? We are now all are the coaches here, so we are doing our work very well, बट उसके साथ हम लोग क्या ब्लेसिंग्स चूज कर रही है. ऑलरेडी यू आर चूजन बाय द यूनिवर्स, ऑलरेडी यू आर चूजन बाय योर सेल्फ एज ए कोच और मे बी एनीथिंग, right? What you are profession at present now, that is not a issue, but how you are doing your work, आप लोग वो कितना आपके वर्क के लिए दे रही हो, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. Okay, and it's clear, 4 karmas. We are going to move the 12 principles, simple principles, how that will be mixed with these 4 karmas. I am not seeing anyone in video mode, no one.
Anyone raise your hand at least? It's clear? Prashanti, Mirja saying it's clear. Okay. So now we are moving to the, in karma's theory, we have the 12 principal laws. 12 principal laws. We have the 12 principal laws. First thing is the law of cause and effect. Today we are going to learn one or two laws, and next we are moving to the relationship issues. In karmic, we very important karma creation or maybe karma experience. Most of the things are the relationships only. Okay, before means as a nutritionist, as a normal dietitian, before started the holistic. Okay, so we are not going to take that much of deep history, right? So what I am think that at least 2000 up to 2017 to 18 तक, I think the most of the people are suffering with money. My intention is मनी का बहुत ज़्यादा इश्यू है. मनी है तो ठीक हो जाएगा, बहुत सारा थिंग्स ठीक हो जाएगा. बट when we are meeting people with deeply, when we are taking the histories, and also we are counseling sessions, so what I understood, most of the people are suffering with the relationships. Okay, and in karma, how that relationships are influenced in karmic relationships, that is the very important in our life. Not now, in before also, in Mahabharata also, in everywhere also, all are very important, that are the relationships. Okay, so today I'm going to take the one relationship guided meditation, but before that I'm going to explain the law of cause and effect. Okay, second one is the law of creation. First thing, in this law of cause and effect, means cause, already we know that everything is energy, all of you know that, right? In healing sessions also we learn. Okay, that is means living or non-living or anything in this universe, everything is energy, right? हम जो देते हैं वो हमको रिसीव करना है. But the law of cause means where we are putting the seeds. जैसा है कि मैंने संचिता कर्मा बोला है ना, संचिता कर्मा इज यू हैव दी फुल ऑफ सीड्स विदाउट एनी जर्मिनेशन. उसका वैसे भी आप लोग ले सकते हो. जर्मिनेशन नहीं हुआ है बट आपके पास बहुत सारा बैग के अंदर सीड्स है. प्रारब्ध कर्मा आप ऐसे ले सकते हो, बहुत सारे सीड्स ऑलरेडी डाला है, उसका जर्मिनेशन हो गए. जर्मिनेशन हो गए तो आपका क्या होता है, जो आप पेड़ डालोगी, मेथी का सीड्स डालेगी तो मेथी आ जाएगी, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट? बट संचिता कर्म इज लाइक आपके बैग के अंदर सीड्स है, उसमें से आप चूज कर सकते हो कौन सा वाला हमको जर्मिनेशन के लिए व्हाट वी कैन पुट. वो कॉज है. एक कॉज में क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मोशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. हम लोगों को रिलेशनशिप में मैंने क्यों लिया था ये दोनों में, बिकॉज इन रिलेशनशिप्स और मे बी in when we are doing something, many times we can do with the compulsion, otherwise we don't have any clarity. Like किसी को कपड़ा देना है, किसी को खाना दे रही हो, राइट? if I ask before the holistic coaches, right, so हम खाना किसी को खिलाएगी ना, क्या होगा? तो सिंपली क्या आंसर आ जाएगी, पुण्य मिलेगी, अदरवाइज गुड डीड्स मिलेगा. बट इन दिस यूनिवर्स, इन दिस earth मीन जो हमारा फिजिकल बॉडी इधर है, वी हैव दी ओनली 2% ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस. जो एथरल वर्ल्ड होती है, एथरल वर्ल्ड मीन्स हमारा जो अदर वर्ल्ड होता है, उधर ही हमारा 98% मीन्स अभी तो हम उधर तक नहीं पहुंचते हैं. बट व्हेन वी वेंट टू दैट प्लेस आफ्टर लिविंग दिस बॉडी, हम लोगों को उधर कुछ चेंज करने की कुछ मौका नहीं मिलती है, बट हमको कॉन्सिक्वेंसेस सब दिखाई देगा. दे हैव गिवन दी सो मच ऑफ नॉलेज, जो वर्ल्ड में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगी, बट आप एक्शन नहीं ले सकते हो, राइट?
जो भी सीखना है, जो भी एक्शन लेना है, दैट्स वाई अर्थ प्लेस इज द बेस्ट प्लेस। आपको जो भी एक्शन लेना है इधर ही आपको लेना चाहिए। यू कैन क्रिएट, यू कैन चेंज। आपको ऐसा लगता है ना मैंने प्रारब्ध कर्म बोल रही है, फिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सो दैट इज कम्स अंडर द लॉ ऑफ क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल? नो, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होती है बट हमको उतना अवेयरनेस क्रिएट करना है। नाउ व्हाट वी आर क्रिएटिंग हियर अवेयरनेस। हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग मेरा अवेयरनेस बढ़ गई है आफ्टर हीलिंग सेशन, ग्रैटिट्यूड? ओके, मेरा अवेयरनेस क्रिएट बढ़ गई है। हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग? यस। आपका जो अवेयरनेस की है ना वो आपको पता नहीं है, आपकी ओरा बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे। आपकी जो फिजिकल बॉडी के आगे लेयर होती है ना, दैट कोशा, दैट इज नाउ इंक्रीजिंग। तो उससे क्या होती है? द लॉ ऑफ काज। काज मीन्स वेयर वी आर गिविंग दैट पुटिंग सीड्स। आप लोग अभी मैं बोलती किसी को दैट्स वे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में वही इज इम्पोर्टेंट। मीन्स हमको जो चाहिए उसके लिए नहीं है, बट व्हेन वी आर गिविंग, व्हेन वी आर सेइंग थैंक यू फॉर एनीवन, व्हाट वी कैन से, व्हाई यू आर गिविंग, व्हाई यू आर गिविंग दैट थैंक यू। अगर हमको फूड देना है, ठीक है, किसी के लिए, इसमें बहुत फूड तो दे रही हो, उसका 2% आपको पुण्य तो मिलेगी, बट उसके पीछे जो इंटेंशन है, मे भी समहाउ मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा फूड है ना, ये वेस्ट नहीं होना है, बेचारा किसी के पेट के अंदर जाएगा, एक इंटेंशन है, राइट। एंड अंदर होता है कि नहीं नहीं मेरे पास जितना है, बेचारा और लोग भूख है ना, तो उन लोगों को देना चाहिए, मुझे जितना मिलती है उतना मैं देती हूँ, ठीक है। वी हैव certain feeling. How many of you agree? We have so many feelings when we are doing anything. We have so many intention means that is that emotion in that moment. How many of you have? Without intention we are not giving anything. Yes, we have something. अभी तो शायद अवेयरनेस बढ़ गई तो और अच्छी तरीके से आप लोग ने बोलती होगी, बिकॉज थैंक यू फूड, ओके, बिकॉज आई हैव दिस फूड, ओके, थैंक यू माय डियर फूड। आप भी किसी और के लिए ये उन लोगों को वन टाइम मील के लिए हम लोग दे रही है, राइट। एंड व्हेन वी आर डूइंग सम वर्क, सो यू थिंक दैट ये एक ही बार हम खाना दे रही है, उसका लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा? नो ना, वी नो दैट जस्ट दैट इज फॉर वन मील, राइट। वो तो पूरा लाइफ टाइम के लिए तो हम लोग नहीं दे रही है। सेम थिंग, सो वी आर अक्वायरिंग द 2% पुण्य, बट विथ योर इंटेंशन। आपका जो इंटेंशन पीछे वाला होती है ना, अगर आपको पुण्य की वैसा नहीं है, कोई रिलीजियस से कुछ भी रिलेटेड नहीं, जस्ट यू आर इन द स्पिरिचुअल। आप लोगों को वैसा लगता है कि मेरे पास है, इफ आई हैव 1 plate ऑफ इडली, सो आई एम गिविंग टू ऑफ प्लेट टू अनदर पर्सन, मेरे पास है उनका, उसका इंटेंसिटी इज डिफरेंट, राइट। तो वो क्या होगा, आपका जो प्रेजेंट का ब्लेसिंग्स है ना, बिकॉज यू आर गिविंग विथ यूर फ्री विल, उधर का पुण्य वो तब सब तो ऑलरेडी आपके अंदर है, अगर आपका परवरिश ऐसा है तो है। बट कुछ लोग मानते नहीं, इट्स ओके, बट दैट्स वाई रिलीजन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उसका रिलीजियस से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हायर लेवल। मीन्स कोई पूजा करे नहीं करे, बट यू आर आप कहाँ पे कौन सा लेवल पे हो, विदाउट एनी इंटेंशन मुझे पुण्य आएगी, मुझे कुछ आएगी, नो, यू डोंट हैव दैट इंटेंशन, जस्ट यू वांट टू बी। उनको हंग्री जो फीलिंग है वो फीलिंग नहीं होना चाहिए उसको, जो मैं हैप्पी फील कर रहे व्हेन आई एम हैविंग फूड, दैट फीलिंग आई वांट टू सी दी फ्रॉम अदर पर्सन्स, राइट। तो उसका इंटेंशन अलग होता है, सो दैट ब्लेसिंग्स आर डिफरेंट। दैट्स वाई कुछ लोग तो बहुत सारा डोनेशन करते हैं, बहुत सारा सब कुछ करते हैं, बट वाई वी आर फेसिंग दिस इश्यूज? वैसा होता है ना, सब अच्छे ही है, वैसे नहीं है, बट वैसे भी लगता है ना, ये लोग तो इतना अच्छा लोगों के लिए बुरा क्यों आते हैं, राइट। सो वी डोंट नो वेदर वी हैव, वो सीड हमने डाल दिया था तो उसको डाल दिया तो उसको एक्सेप्ट करना है, वेट करना है उसके राइपन तक, ठीक है, उसका वो रिमूव करना है। अदरवाइज सीड्स नहीं डाला है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज संचिता, ओके, लॉज एंड कॉज इफेक्ट में आता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नाउ व्हाट यू आर, आप अभी जो कर रही हो,
तो उसमें से सिंपली एक्सेप्ट करना है. दैट इज डिफिकल्ट. इफ आई एम सेइंग मैडम तो बोलती है, मैडम को वो जगह पे नहीं है इसलिए नहीं वैसा फील हो रही है. But when you know all these laws na, so that's why we are creating the awareness. अवेयरनेस के थ्रू से क्या होती है, यू आर एंटरिंग इनटू द एक्सेप्टेंस. आप खुद एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी नहीं कि लाइक मैं मेरे अंदर जो भी है मैं राइट मैं एक्सेप्ट करती हूँ, दूसरा लोगों को चेंज होना वैसा नहीं होती. पहले क्या होता है, मैं जैसा भी वैसी हूँ, मैं भी खुद एक्सेप्ट करती हूँ और दूसरों के लिए भी एक्सेप्ट करके उन लोगों को चेंज करने की. आई एम नॉट गोइंग टू थिंक उन लोगों को चेंज करना है फोर्सबली, नो. राइट. सो हमारे अंदर काज एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट. एंड इसका भी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी रहती है. टुमारो आई विल गिव यू. समटाइम्स व्हाट विल बी हैपनिंग ना, वी डोंट नो अवर वर्ड्स. ह्यूमन को गीता में भी एक्सप्लेन किया है श्री कृष्ण ने. सबकी अलग एनिमल्स को सबको पॉइजन दांतों में होती है, अदरवाइज कुछ अलग प्लेसेस में होती है, बट ह्यूमन के लिए कहाँ पे होती है, वर्ड्स के ऊपर होती है. इफ यू कैन यूज दोज वर्ड्स, वर्ड्स अमृत भी हो सकता है, वर्ड्स पॉइजन भी हो सकता है. प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स. ऐसी नहीं है कि एक्सेप्ट हमको जो भी लोग बोल रही है हमको नहीं बोल रहा, वैसी नहीं है. यू कैन लुक एट आपका लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी, वो सब लॉस में आपको पता चलेगा कहाँ पे कितना बोलना है, कहाँ पे क्यों नहीं बोलना है. Okay, in further laws. And second thing is that is the law of creation. Law of creation means that is also comes under the law of attraction. Law of attraction, law of creation is same. एंड हमको होता है ना, हम इतने सब लिख रही है, राइट, वी आर डूइंग सब मैनिफेस्ट कर रही है, मैं इतना इतना लिख रही हूँ, मैं बहुत महीने से कर रही हूँ, बट वाई दीज आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही? जस्ट पॉज, थिंक, मेरा पीछे के बैकग्राउंड में क्या है, व्हाट आई नीड टू क्लियर, और कितना है मेरा क्लियर के बैगेज. मे बी व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ, इट विल बी नीडेड. कभी भी उसको ऐसा मत कर दीजिए ये मुझे क्यों आया है. जस्ट ब्लेस एंड रेडी टू एक्सेप्ट. बिकॉज वेन यू आर एक्सेप्ट ना, आपका जो कर्म दूर होने की है ना, 10 years तक होने वाला, शायद आपके जो भी काम कर रहे हैं 1 year में फिनिश हो जाएगा. वेन यू कैन एक्सेप्ट विद द काइंड, विद द लव. वैसे नहीं कि उनको ब्लेम करके एक्सेप्ट करना है तो मौन में वैसे रह के फिर मन के अंदर उसको गाली दे रही हो, मुझे क्यों करना है, क्यों करना है. नो, यूनिवर्स विल नोस एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज वाइब्रेशन. एक्सेप्टेंस मीन्स तन मन, पूरा मन के साथ, सोल के साथ. आपको सोल की अवेयरनेस कब बढ़ जाती है, व्हेन यू नो ऑल दीज लॉस. लॉस की पता चलती है ना, देन यू विल नो दैट हाउ आई नीड टू बी एक्सेप्ट. शायद अभी एक्सेप्ट करने से आपका जल्दी तुरंत उसका चेंज हो जाएगा, राइट. एंड एनी क्वेश्चंस इन दिस, सो आई एम गोइंग टू मूव टू द रिलेशनशिप का. मैं कल भी लेती हूँ, आज भी थोड़ा लेके फिर शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी. इट्स क्लियर? क्लियर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका धीरे 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 इसका वैसा होती है ना, थ्रू एक्सपीरियंस के साथ भी, अवेयरनेस एक्सपीरियंस के साथ भी विज्ञान आ जाते हैं. विज्ञान मीन्स साइंटिफिक एक्सपीरियंस, हमारा खुद का एक्सपीरियंस. Anyone please switch on your cameras. No one is on the cameras today. Ma'am, one doubt. Yes, Maha. In here, we are accepting the situation and creating the awareness means previously we don't know about that situation. Our perception is different because whatever it may be happen in our life, we are blaming the person or the situation. We are not responsible. But while practicing this gratitude or blessing, we are creating the awareness and accepting fully. Means, see, it is not I am accepted. I will do gratitude. I will write blessings and keep on blaming. It should not be happened. That's what you explained in this, no, ma'am? Yes, yes. Reaction कम करना है, response ज़्यादा देना है, simple. Okay. I understand. Now I understand. Yes. And next we are moving to the relationship. It's a very, very huge subject and very important subject in our life, everyone's life.
राइट. एंड टुमारो आई विल गिव दी वन रिलेशनशिप का कार्ड कटिंग का मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिया है, बट कल कितना लोग भी अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कार्ड कटिंग का वो देती हूँ. बट वैसे नहीं कि आप दूसरों लोगों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं. जो लोग कल अटेंड करेगा उनके लिए जो जितना इंटेंसिटी है उसके लिए करती है. वो रेगुलर प्रैक्टिस उससे करवाना पड़ेगी तो ही उसका डिफरेंट होता है. राइट. इन रिलेशनशिप आपने कितने लोग ने एक्सपीरियंस किया है कभी वैसा हमको लगता है ना, हमको उन लोगों का परिवार के बारे में पता है, दे आर नॉट गुड, उन लोग थोड़ा राक्षस जैसा है, वो पीता है, ऐसा है, तो भी लड़की या लड़का उन लोगों के साथ ही शादी करना चाहते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू सी इन योर लाइफ? हमको लगता है नहीं, अरे यार ये लोग कैसा है, वैसे कैसे एक्सेप्ट कर रही है, बट कितना भी बोलो दे आर रेडी टू मैरी. ओके. बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक रिलेशनशिप्स हम लोग किसी के मिला है तो वो भी कार्मिक है, बट एवरीथिंग इज कार्मिक. राइट. And when you are not accept, when you are not forgive in your previous life, तो वो लोग हमारा बहुत नज़दीक रिलेशनशिप में आ जाएगी. तो वो आप लोग याद रखना, ठीक है. आप लोगों को अभी रिलीज करना है. जो भी आप लोग फॉरगिव नहीं कर रहे तो आपको और बहुत नज़दीक में कौन होता है? पार्टनर, बच्चे, सासू सासू माँ, बहन, फादर, मदर. ओके. इसका रिलेशनशिप में आपको और करीब रिलेशनशिप्स में आ जाएगी व्हेन वी आर नॉट फॉरगिव, क्योंकि उसका तो लेना ही चाहिए. बिकॉज ऑल ह्यूमन्स आर हियर, karma is the real, humans are just we are also playing someone life as a karmic energy. हम लोगों को असाइनमेंट होती है सबका, बिकॉज हियर ह्यूमन्स आर मीडिएटर्स. उनके थ्रू से वो एक हमको एक्सपीरियंस करना था, हमको वो कार्मिक रिलीज करना था. हम लोग क्या करते हैं, इनकी वजह से वैसा नहीं हो रही, नो, इनकी वजह से नहीं है, कुछ बैलेंस है. दैट्स वाई वी आर रिमूविंग थ्रू दैट पर्सन, वी आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू दैट पर्सन. ये अवेयरनेस क्रिएट होना ही चाहिए. एंड जो मैंने पहले बोला है ना, लोगों के साथ शादी क्यों कर रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम लोगों को लगता है कि अरे यार ये लड़की इतना सुंदर नहीं, कुछ भी नहीं है, लड़का बहुत सुंदर है, बट इनके साथ शादी कैसे कर रही. ऐसे बहुत में हो सकता है. राइट. दैट इज ऑल्सो कार्मिक. हम लोग क्या देख रहे हैं, जस्ट ऊपर का देख रही है. एंड वी डोंट नो अबाउट एवरी वंस कार्मिक का तो हमको पता नहीं है, बट सोल नोस. उनका जो लाइफ के एक्सपीरियंस करना है ना, सोल नोस. दैट्स वाई सोल विल चूजन why we are attracting certain situations, why we are attracted these partners in our life. ओके. बहुत सारे लोग हैं, बट वाई वी आर अट्रैक्टेड दिस पार्टनर, हम लोग को उन्हीं के साथ में क्यों होना है, वाई वी आर अट्रैक्टेड. हमको 4-5 आ जाते हैं, बट वाई वी आर अट्रैक्टेड, बिकॉज वी वांट टू रिलीव दैट कर्मा. योर सोल नोस. एंड उसमें क्या होती है, एक तो अदर रिलेशन के थ्रू से आपको जन्म में उसका कार्मिक रिमूव करना पड़ती है. एंड वन मोर इज वाइफ एंड हस्बैंड. मे बी यू आर लास्ट जन्म में मेल सोल होगा, नाउ यू आर फीमेल, ठीक है. तो वाइफ एंड हस्बैंड का जो सोल होती है ना, एक साथ में आप प्रेम बांट लो, एक साथ में आप झगड़ा कर लो, बट यू हैव दैट चांस. अभी आपके अंदर में इतना चांस है, मे बी अभी आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्टी है, बट व्हेन यू आर मोर अवेयर, मोर काइंड, मोर कंपैशन, मोर इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ना, आप लोग भले पेशेंसी के साथ, आपका सिचुएशन कभी वैसा होगी, बट वो बहुत सुधर जाएगी. बिकॉज उसका ये लाइफ टाइम में आप वो सुधरने के लिए ये सोल ने वैसा चूज किया है पार्टनर्स को. राइट. अदरवाइज दे आर कमिंग विद द अंदर रिलेशनशिप के साथ वो आपको तो एक्सपीरियंस करना ही है. वैसी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस नहीं लेना है, वैसा नहीं है. बट कोई पर्सन के थ्रू से आ जाएगा, अदरवाइज ये पर्सन के थ्रू से नहीं है तो अदर पर्सन के थ्रू से आपके लाइफ में आ जाएगा. इफ यू आर फेसिंग सर्टन इश्यूज, अब सबके लाइफ में कुछ तो कुछ इश्यूज होती है, तो लुक एट योरसेल्फ. हम लोगों को देखना है एंड एक्सेप्ट, आज ही ये जन्म है, मुझे क्लियर करना है. सो व्हाट आई कैन डू,
मेरी तरफ से मैं क्या क्या कर सकती हूँ। डोंट फील गिल्टी एनीथिंग, आपका जो भी होता है वो बहुत सारा वी हैव द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, राइट। सब थिंग सबके लिए सूटेबल नहीं होता है, सब थिंग सबके लिए कर्म इतना जल्दी कम नहीं होते हैं। दैट्स वाई कोचेस हीलर सब लोग होती है ना, बिकॉज सब एवरीथिंग इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। सूटेबल मीन्स कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती है, बट उसका रिलीज करने के लिए कुछ चीज़ ज़्यादा चाहिए, कुछ चीज़ कम चाहिए होता है। एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अभी कुछ लोगों को डाइवर्स हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल दे आर मैरिड, बहुत अच्छा लव मैरिज भी हो, अरेंज्ड मैरिज भी हो, डूइंग द मैरिज, राइट। मैरिज हो गई है, बहुत अच्छा था पहले 1 ईयर 2 ईयर्स, बाद में बहुत झगड़ा हो रही है, ठीक है। वैसा हमको लगता है ना, दे आर वेरी लवेबल कपल। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, हनीमून की पीरियड खत्म हो गई है 10 ईयर्स के बाद, वैसे एक शॉर्ट में बोलते हैं इसका हनीमून का पीरियड खत्म हो गया। मीन्स वो मोमेंट क्यों मिस हुआ है, because of one is the sanchita karma, the cause and effect. Maybe we are created this time or maybe we are created from the past. जो भी अच्छा था ना वो पर्सन के साथ, कभी ऐसा लगता है ना ये लोग इतना झगड़ा करते हैं बट इन लोग को बच्चे कैसे हुआ है, बिकॉज वो रिलेशन में उससे पहले भी आप लोग ने कुछ अच्छा कर्म तो होती है ना, आपको वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, ठीक है, अच्छा करना है तो बच्चे हो जाते, बिकॉज दैट आर द गुड डीड्स। मीन्स आपके हाथ में अभी भी यू हैव दैट चांस, आपके अंदर में अभी भी चांस है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ ऐसा होता है ना, फिर बाद में झगड़ा हो जाते हैं, पहले अच्छा होता है। अदरवाइज कुछ लोग, आपने कितने लोगों को ऑब्जर्व किया, पहले बहुत झगड़ा करते थे बट विथ पेशेंस विथ अच्छा, आफ्टर 5 to 6 years के बाद शायद रिलेशनशिप में इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ बट झगड़ा नहीं होता है, दे आर स्टेबल। कितने लोगों को आपने ऑब्जर्व किया है आपकी लाइफ में, एनीवन? Me, ma'am. सोनिया आल्सो, एवरीवन, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। यस, बिकॉज ऑफ उन लोगों को क्या होती है ना, दे आर क्रिएटिंग नाउ अवेयरनेस। मे बी ये कर्मा के ऐसी नहीं है, ठीक है मेरा कर्म इतना है करके दे आर प्रैक्टिसिंग, उनको पता है या पता नहीं है, फर्स्ट वो तो एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने की ऐसी नहीं है कि ब्लेमिंग करना, ठीक है। एज ए सोल वी कैन एक्सेप्ट ना, सो आधा प्रॉब्लम उधर ही क्लियर हो जाता है। तो हमारा परसेप्शन विल चेंज, हमारा देखने की, हमारा जो दिल में बहुत बोझ होती है ना, बहुत, वो पेन ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। एंड व्हेन वी आर डूइंग द गुड डीड्स, हमको पता ही नहीं चलता है कि, बोलता है ना इनका तो अच्छा है, बहुत पेशेंस है, तो उन लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। एंड कुछ लोगों का कार्मिक असाइनमेंट होती है, जैसा एक अग्रीमेंट होती है ना, तो शायद उन लोगों का उधर तक वो अग्रीमेंट था, इसीलिए वो पर्सन को डाइवर्स हो जाता है, दे आर मूविंग फ्रॉम फॉर अवे। मीन्स उनके साथ उनका उधर तक था अग्रीमेंट, वो खत्म हो गई है। एक्सपीरियंस लिया है तो, बट व्हेन पर्सन इज नॉट टेकन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लेसन नहीं लिया है बट दे वांट टू जंप, उसको जंप करना है। इफ दे आर डन दी डाइवर्स ऑल्सो, अदर पीपल को भी वो लोग करेगी ना, सेम एक्सपीरियंस होता है, झगड़ा होना, वैसे ही एक्सपीरियंस करना। मीन्स उन लोगों का अभी भी वो यूनिवर्स के साथ जो भी प्रीवियस का है, जो लेसन है, जो लर्निंग है, अभी भी वो लोग नहीं सीखा है, इसीलिए फिर अगेन सिचुएशंस कमिंग इन आवर लाइफ अगेन एंड अगेन, राइट। ये वाला रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होती है। And I told her, don't let go. She understood me. Okay, Sejal. And you are using one beautiful word, Sejal, is let go. लेट गो क्यों करना है, बिकॉज नाउ यू आर मूविंग। समटाइम्स ऐसा लगता है ना, हम तो इतना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मैं इतना कर रहे हैं, तो भी मैं इतना प्रॉब्लम उनके साथ क्यों फेस कर रही हूँ। यस, अभी भी आप लोगों का और और थोड़ा बाकी है। नाउ यू हैव टू बी रिलीज दैट थिंग, और बाकी है। एंड एक ही ट्रूथ है, नाउ यू आर इन द सोल कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट इन द सोल कॉन्शियसनेस। उनका कर्म वो लोग करते जा रहे हैं। सो आपको क्या कंपैशनेट होना चाहिए। ट्रूथ है, बहुत डिफिकल्टी होती है बट यू नो द ट्रूथ। तो आपके लिए क्या होती है, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू न्यू थिंग्स विल ओपन फॉर यू टू मूव ऑन।
इसलिए डिटैचमेंट का भी बहुत अच्छा होती है, वो लॉस 9th में आ जाता है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, राइट। एंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड का भी हो, कोई भी रिलेशन में हो, जैसा भी हो, just let it go and accept as a soul level. So you can look at, maybe some people will change photo, what happening ना when we are accept ना, पर कहा, हमको सबको पता है हमारा एनर्जी कहाँ पे हमारा एनर्जी कहाँ पे जाता है, ठीक है, हमारा कहाँ पे जाता है पूरा एनर्जी, ग्रैटिट्यूड का सेशन में सब लोग हैं, हमारा एनर्जी कहाँ पे जाता है, फ्लो कहाँ पे जाता है हमारा एनर्जी का, जहाँ पे फोकस जाता है, राइट। यस, कंप्लेंट इज मोशन, फोकस, व्हेन वी कैन अननोइंगली फोकस ना, एनर्जी पूरा उधर ही जाता है, जाएगी तो क्या होगा, सीड्स का जर्मिनेशन होना स्टार्ट होती है। बट व्हेन वी कैन स्टॉप दिस सीड जर्मिनेशन, ये पूरा कर्म में हम लोग अभी क्या कर रही है, सेम फिर बैकअप जा रही है, राइट। आपको वर्तमान कर्मा में हम लोग क्या कर रही है, वी और स्टॉपिंग दैट फ्रूट, हमको मुझे फ्रूट ही नहीं चाहिए, फ्रूट नहीं चाहिए मीन्स एक कर्म का जो सीड हमने बोगा है उसका फ्रूट लिया है, अभी मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, सो व्हाट आई एम डूइंग, पेड़ को निकालना है, राइट। नाउ आई एम रिमूविंग दैट ट्री विद द गुड डीड्स, ट्री निकालने के बाद क्या होता है, पूरा उससे रिलीज हो जाता है, ह्यूमन सिचुएशन से हमारा लाइफ में कुछ लेना देना नहीं, सोल का पूरा रिलीज हो जाता है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग न्यू कर्मा हम लोग अभी साइल में ऐड कर सकते हैं, न्यू ट्री मीन्स विद द गुड डीड्स, वो गुड डीड्स हो सकता है, दैट इज योर विश, आपको इतना अवेयरनेस आने के बाद आप क्या डालना चाहते हो, दैट इज एन योर विश, वही हम लोग कोचिंग में करते हैं, बट इट विल टेक टाइम, ये तो बहुत पर्सनली कस्टमाइजरी देखने से इतना इजी नहीं होता है, सब लोगों को एक्सपीरियंस हो गई होगी, इट विल नीड टाइम, पेशेंस, ठीक है। एंड वाइफ एंड हस्बैंड का भी हो, तो जो भी रिलेशन है तो एक्सेप्ट एंड लेट इट गो, ये दोनों रखना ही चाहिए। आप लोगों को प्रेम चाहिए, प्लीज गिव लव टू अदर्स, आप लोग पहले देना सीख लीजिए। इफ यू वांट रेस्पेक्ट फ्रॉम योर स्पाउस, गिव रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ, गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स, ओके, एवरीथिंग यू नीड टू बी गिव, तो देन यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव, कौन सा फॉर्म में होती है, कैसा होती है, वी डोंट नो, दैट इज कम्स अंडर द लॉ ऑफ क्रिएशन, इसलिए 80% हो सकता है, 20% क्यों नहीं होता है, कितना भी लिख दो, कितना भी कर लो, बिकॉज दिस इज द प्रारब्ध कर्म, क्योंकि वो राइपन हो गई है, उसको तो हम करना ही पड़ेगा, तो रेडी, बी रेडी, नहीं तो आप ये भी नहीं है तो और एक क्यों, दिस सिचुएशन स्टैंड अप, so I hope it's clear. Everyone, any question and answer? Otherwise, we will move to the meditation. Next, I am going to take the in pure Telugu next month, all this session. How many of you want in pure Telugu? Many are asking me, that's why. Yes, next month, okay, this month I am going to continue. Sejal, you want to? No, Sejal, I am finishing all these sessions in English, Hindi only. After that, Yeah. second series, like a magic session. Yes. Okay, then it's fine. Yes. Okay, so now all of you can sit comfortably. And पहले healing कहाँ से start होती है? पहले we need to forgive. उधर से ही हमारा start होती है life का. మొత్తం హిందీలోనే చెప్తున్నారు కదా మేడం. Who is this? Vinita? మేడం మొత్తం హిందీలోనే చెప్తున్నారు కదా. వినీత, నువ్వు ముందు అడగాల్సిండుండే వినీత, నేను ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ కేర్ టుమారో. నీకు వచ్చు కదా వినీత, యు నో దట్ నా హిందీ. అంటే ఎంతైనా తెలుగు అయితే బాగా అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు బి జాయిన్, ఇప్పుడు కూడా జాయిన్ కండి, నెక్స్ట్ సెషన్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, లైక్ మ్యాజిక్. గుడ్ ఈవినింగ్ రక్షిత్. Can I join? Yes, meditation, you can join Rakshit.
All of you can see. Yes, relationship meditation start. ఎంతసేపు ఉంటుంది? 10 minutes. I'm going.